So I would say, Raju sir, please take over. I will start the presentation. You can just talk. हाँ कॉलर माइक है कॉलर माइक लगा दीजिए इजी हो स्पीकर्स के थ्रू आवाज आ रहा है ना हाँ परफेक्ट परफेक्ट आई एम नॉर्मली क्वाइट सॉफ्ट स्पोकन सो आई डोंट लाइक स्पीकिंग लाउडली नहीं तो मेरा ही गला खराब हो जाएगा सो थैंक यू अल्पा जी फॉर हैविंग मी हियर इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू टुडे the reason why one of the reasons why I agreed to do this is because when Alpa asks, it's very difficult to refuse. So that is one of the reasons. But the main reason was that I've spent 3 years with NJ now, with the NJ group now, and obviously I've been running the asset management business. But when you become a part of the group, you get to know how the entire group operates. And one thing that was intriguing me from the outside always about NJ was that how does NJ grow at twice the pace of the mutual fund industry? Right? Mutual fund industry जो pace पे चल रही है उससे double pace पे NJ का AUM grow हो रहा है. ये कैसे होता है? Right? And obviously when NJ's AUM is growing at twice the pace, that means the partner's AUM is growing at twice the pace because NJ itself does not have any AUM. It all belongs to the partners, right? So that's when I started diving a little deeper into what they do. Because they offer a lot of training, they offer a lot of programs for their partners, and this training and programs is what helps those people to go out and build business practices, right? That allow them to grow. So we said that we are going to make this the basis of our AMC's outreach with mutual fund distributors. We are not going to be talking about commission. Our products are completely differentiated. We'll work on, we'll introduce the products to you once. We'll introduce our philosophy to you once. After that, you won't need a refresher. But our engagement with the mutual fund distributors is going to be based on the fact that if you, excuse me, if you work with us, if you empanel with us, working is fine. You want to give us business, not give us business, that's your decision. But if you get empaneled with us, that would give us enough grounds to start imparting the understanding and the knowledge that the group has gained on how you can sustain, 24-25% growth, okay, for, build a 24-25% per annum growth business. How you can do that, right? Because that is what the dream is, that is what our dream is for everybody, for the industry, and I think the industry will obviously support that kind of growth. But 24% per annum means doubling in 3 years, which means 10 times in 10 years, okay. So if that is the vision that all of you have, okay, there is a partnership opportunity out here which is not going to be based on 5-10 basis points of commission. I am not going to be paying you the best commission. I'll be very honest. Our business is rule based, our investments are rule based, our commission payment is rule based. There is a grid that has been approved by the board. I have no discretion on it. Okay, I cannot do deals, right? We don't believe in transactions. We believe in a relationship. As your business with us grows, your commission on our entire AUM will grow, not only on incremental on the slabs, but on our entire AUM. So that is the kind of structure that we have in place. So that's just the introduction that I wanted to give. That's not the reason why I'm here. I said, let me start off this engagement. A lot of you would not, have heard of NJ Mutual Fund before this, or maybe if you've heard it, you've always thought, "Kare yaar, wo NJ ka part hai, uske saath kaam kare ke nahi kare, wo sochna padega," right? So there are a lot of, there's a lot of hesitation that will be there. There are a lot of resistance that will be there, and we respect that. Because at the end of the day, it's your business. It's got to be your decision. Okay, we are not here to force you to sell our products. Our products are excellent. We are very confident that you will sell them over time. If today you're not comfortable, at some point of time you definitely will be. We've now, made it a habit in our industry to talk about goal-based investing. We go to, हम investors के पास जाते हैं, goal-based investing की बात करते हैं कि goal-based investing में हमें पता है कि अगर हम investor को goal पे convince कर दें कि ये उसका goal है और वो goal के लिए एक investment process शुरू कर दें, तो वो उसकी longevity बढ़ जाती है, उसका persistence बढ़ जाता है. उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा investor का भी होता है और हमारा भी होता है, right? कि इन्वेस्टर फिर जल्दी से घबरा के he doesn't run away from that investment, and we benefit because the investor is not questioning the reason why he has made that he or she has made that investment. So there's
Exactly. So you have, what we have done is that we've made this goal-based investing a very, very popular thing. Okay, we've made it very acceptable to people. But what I realized in our, in my interaction within NJ and the thing is that sometimes partners themselves, and partners means MFDs, sometimes MFDs themselves don't have their goals clear. Okay. तो हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग तो लोगों को सिखाते हैं बट गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते. ओके, सो अगर हमको यही गोल बेस्ड तरीका हमको इन्वेस्टमेंट में उसका सक्सेस दिखाई देता है तो हमारे बिजनेस में क्यों नहीं दिखाई देगा? एग्जैक्टली, हलवाई मिठाई नहीं खा रहा. तो हमारे बिजनेस में भी उसका सक्सेस दिखाई देगा, बट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स देयर, वी नीड टू रीओरिएंट आवर माइंड टुवर्ड्स आवर बिजनेस. एंड आई विल टेक यू थ्रू अ कपल ऑफ द थिंग्स दैट come to our mind. This is just an introduction. See, I can honestly tell you the amount of things that I've learned from within NJ. I can make about 100-120 of these presentations. Okay, how much time do I have today, Alpa? Okay, so I'll try and make it as quick as possible, right? So I'll leave this thing. So let's start with this. ये हम सबको पता है, ये गीता का एक श्लोक है, श्लोक का एक भाग है. Okay, and इसमें basically what has been said is that कि आप कर्म करते रहो, कर्म का जो फल है उसकी that you're not entitled to it. You need to continue working, right? You just need to continue working. You're not entitled to the fruit of your labor, right? And there is this prayer that I think all of us are aware of, which says that, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Right? This is the basis. हाँ जी, हाँ, ओके. तो ये हमारे बेसिस है. ओके, और हमारी जिंदगी का बेसिस क्या है? हमारी जो लाइफ है, हम लोग जो जिंदगी जीते हैं, ओके, उसका जो फाउंडेशन है वो ये फॉर्मूला है. राइट? दिस फॉर्मूला इज आवर लाइफ. ओके, आप मानते हैं बराबर ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ही हमारी ज़िंदगी चलती है, इसी के बेसिस पे इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है, इसी के बेसिस पे हम सबका फ़ायदा होता है. अगर हमें लॉन्जेविटी मिलती है इन्वेस्टर में तो इसी से हमारी ज़िंदगी बन सकती है. राइट? ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है. अब एक इसमें चीज़ देखते हैं कि सॉरी, अच्छा, डिफरेंस दिखाई दे रहा है कलर्स में? ओके, ओके. तो पी पे किसका कंट्रोल है? अभी पी थोड़ा सा काला हो गया वहां पे, वो नहीं दिख रहा ठीक से. तो पी पे किसका कंट्रोल है? जो प्रिंसिपल है वो कौन कंट्रोल करता है? ओके, सॉरी. एन पे किसका कंट्रोल है? नंबर ऑफ इयर्स. इन्वेस्टर. प्राइमरी कंट्रोल इन्वेस्टर का है. ठीक है. आर पे किसका कंट्रोल है? मार्केट का. तो हम क्या करते हैं? नहीं, बट क्या करते हैं? आपके कंट्रोल में तो है नहीं. हाँ जी, करेक्ट. सो you manage behavior. I'll come to that also. That's part of the slide. One of the questions that people keep on asking, and this is one part of it. So I just wanted to make clear that first of all, we need to understand that we do not control anything in the market. We have least control over R, which is the return. और सबसे ज़्यादा डिस्कशन किस पे होता है? राइट? तो ये जो डिस्कशन है ये आज तक कभी प्रोडक्टिव हुआ है कि हमेशा अनप्रोडक्टिव ही रहा है? It cannot be productive because it's, what do you talk about it? रिटर्न पिछले में क्या था, आगे में क्या होगा तो आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, मार्केट को भी पता नहीं है. ठीक है. मार्केट जो है, इट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स. दैट इज व्हाट द मार्केट इज. वी कैनॉट इवन, no human brain, no computer, no artificial intelligence can understand what that collective intelligence is going to result in. हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है. तो आर पे जो डिस्कशन होते हैं सबसे काउंटर प्रोडक्टिव डिस्कशन होते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्कशन होते हैं. राइट? एंड वी कम टू दैट. नाउ ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू चेंज. व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? अरे टीआर कम हो जाएगा, रेगुलेशन और आ जाएगा, स्कीम पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, सेबी हमको ये कर देगा.
चेंज में पॉजिटिव क्या कितने लोगों ने सोचा है, जरा बताएं मुझे प्लीज। हाँ जी, क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है? हाँ, business is going to grow. No, so that is something that is not going to change because business has grown. I am talking about what do you positive change that is going to happen. See, business growth is something that has been happening for the last 25 years. वो तो बढ़ ही रही है, पिछले 5 साल में भी बढ़ी है। चेंज क्या होने वाला है वो बताइए, पॉजिटिव पॉइंट होते रहा है। My point is, when you talk about change, we talk about negative change. Our focus is always on negative change. Okay? हमारा TER कम हो जाएगा, मेरी अर्निंग कम हो जाएगी, मेरा ये कम हो जाएगा, मेरा वो कम हो जाएगा, इंडस्ट्री में फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री में जब हमारे सेगमेंट में लोग बात करते हैं, अरे इतने सारे म्यूचुअल फंड आएंगे, हमारा क्या होगा? लाइक ठीक है, but it's always a negative narrative. Because you don't know the future, you are uncertain about the future, you are afraid of it. Okay? But that's a positive change, right? Okay, are you prepared for it? So what will remain the same over the next 10 years? ये बताइए, because this is a more important question than what will change, and I'll explain why. Client needs hand-holding. Client needs hand-holding. I mean, taking when the greed and fear of business, उनके goals will be there. That will be perfect. तो हमें पता है, हमें डर है जो चेंज होगा उससे, और हमें पता है क्या नहीं चेंज होगा। ओके, उससे हमें डर नहीं है, वो तो हमें पता है और हम उसको हैंडल करते आए हैं। तो आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? ऑन व्हाट विल चेंज और ऑन व्हाट विल नॉट चेंज। You have to develop your business strategy on what is not going to change, because that is the only thing that you can develop a strategy on. Change तो आपको पता ही नहीं है। हाँ, आप अपनी business strategy किस पे decide करेंगे? जो चीज़ आपको पता है कि ये ऐसा ही होने वाला है, इसमें चेंज नहीं आने वाला, उस पर ही आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी करेंगे और उस पर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। मैं आपको एनजे ग्रुप की लर्निंग्स बता रहा हूँ। जब से शुरू हुआ था, जब से एसआईपी बेचना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बोला एसआईपी का मार्केट बदलने नहीं वाला, इन्वेस्टर को एसआईपी समझाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, और हमें ऐसी टीम बनानी है जो ऐसे लोगों को समझा सके कि इन्वेस्टर को कैसे समझाना है कि एसआईपी क्या है। ओके, तो वो टीम, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस हिसाब से डिज़ाइन हुए। उन्होंने जो 1997-98 में जब एसआईपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2000 में जब एसआईपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रोल आउट करना शुरू किया था, ओके, इट वाज मैनुअल एसआईपी, इट वाज नॉट सिस्टमाइज्ड एट दैट टाइम, राइट। उन्होंने जब रोल आउट करना शुरू किया था, उनके मन में ये क्लैरिटी थी, एसआईपी का मार्केट कम नहीं होने वाला, राइट। एनजे की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंडेंट है। आज 2.25 लाख करोड़ का AUM है, ओके, और 2.25 करोड़ का SIP बुक है, राइट। दैट बिजनेस स्ट्रैटेजी इज अनअसेलेबल, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, क्योंकि आपका 1% पर मंथ का SIP बुक है, तो 12% साल का ग्रोथ उधर से आ गया। लॉन्ग टर्म में मार्केट 12% देगा तो 24% ग्रोथ आपका आ गया। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको हो गया कि आप अपनी बुक में 1% SIP आपके पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लग जाइए, 1% SIP बनाइए पहले, ओके। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू अ sustainable business, right? So what can change is new technologies will come, disrupt the mutual fund distribution market. आएंगे, Zerodha आएगा, ये आएगा, expense ratio reduce होगा, stricter regulation, more investors will move to direct plans, yes, okay. Tech savvy investors will continue to move towards tech solutions. जो हमारे बोलते हैं ना यूथ, जो हमारा यूथ वो Zerodha यूज़ करता है या ग्रो यूज़ करता है या जो भी यूज़ करता है, तो हमको वो डर लगा रहता है कि पूरा का पूरा नया इन्वेस्टर बेस तो उधर जा रहा है, राइट। वील कम टू दैट ऑल्सो। व्हाट विल नॉट चेंज इज दीज थिंग्स। इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, वी आर क्लियर ऑन दैट। इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू बी क्रिएटेड, रिटर्न्स विल स्टिल बी जनरेटेड बाय मार्केट्स एंड कंपनीज, ओके। इन्वेस्टर्स विल स्टिल बी ड्रिवन बाय ग्रीड एंड फियर। ये सब कुछ बदलने नहीं वाला है, इन्वेस्टर को नहीं समझ में आता ये सब। Investor will still be confused between volatility and risk. See, volatility is not risk. हमारी इंडस्ट्री में ने भी आपको यही बात समझाई है। शार्प रेशियो, रिटर्न डिवाइडेड बाय वॉलिटिलिटी यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इट्स नॉट, इट्स वॉलिटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क एक ही चीज है, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। वॉलिटिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी एज मच एज अ रिस्क। वॉलिटिलिटी में जब बाजार नीचे जाता है तो वॉलिटिलिटी की वजह से बाजार ऊपर भी जाता है।
So volatility is not risk. People don't understand this. Okay, investors will not understand this. We have to understand and explain it to the investor. That is not going to change. And investors will still need help and guidance. आपको अगर लगता है कि ये पूरे टेक इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, सब हमारे बच्चे और हमारे जो नया जनरेशन है वो पूरा टेक्नोलॉजी में जाने वाला है, उसका एक रीज़न जो मैं पूरे दिल से मानता हूँ कि दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. ओके, people are moving to technology platforms because distributors have stopped going to their homes. Okay. डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके घर जाना बंद कर दिए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने का सोचते नहीं हैं, राइट? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलता है, लग जाते हैं उसमें. इट्स नॉट देयर प्रिफर्ड रूट. वी बिलीव इट्स देयर प्रिफर्ड रूट. इट इज़ नॉट देयर प्रिफर्ड रूट. दे वुड लव सम गाइडेंस, बट वी आर नॉट अवेलेबल टू दैट. आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग में से कितनों के पास आपके घर और ऑफिस के 500 मीटर के रेडियस में हर एक आदमी को ये पता है कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो? मतलब मैक्सिमम, लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ योर ओन नेबर्स. ओके, 500 मीटर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लार्ज रेडियस. वो तो पैदल कवर हो सकता है. आपने घर घर पे जाके लीफलेट डाले हैं, आपने घर घर पे जाके कॉन्टैक्ट्स डाले हैं. आपकी जो ऑफिस प्लेस है, ऑफिस स्पेस में बिल्डिंग्स हैं, ओके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ऑफिसेज में जाके आपने लीफलेट्स और अपने कार्ड दिए, right? So these are the kind of practices that help you develop that, where people come to know that you're doing something. Now, आप ये सोचिए, if every mutual fund distributor does this, okay, कोई भी investor untouched रहेगा क्या? कोई भी investor untouched नहीं रहेगा. फिर उनके लिए टेक प्लेटफॉर्म चॉइस हो जाएगा. आज उनके लिए टेक प्लेटफॉर्म एक कंपल्शन है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कोई हेल्प करने वाला उनके पास में बैठा है. नो वन नोज दिस. Very few people know this, right? So we have changed our business practices. And that is where our strategy needs to come from. Okay, how do we combat this? How do we combat this? By increasing our outreach. हम 500 मीटर करते थे, 1 किलोमीटर करते हैं. सबको पता होना चाहिए मैं क्या करता हूँ, right? There should be no one in my friend circle or my friends का friend circle या जो भी, जितना extend कर सको अपने reach को extend कीजिए, because that is one thing that you do control, right? So should we be trying? तो गोल क्या बनता है फिर हमारा? मार्केट टाइमिंग हम कर सकते हैं? किसी को आता है मार्केट टाइमिंग? संदीप जी बैठे हैं इधर. हम लोग इतने साल हो गए मार्केट में, संदीप जी और मुझे. आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स नाउ. कैन एनीवन डू मार्केट टाइमिंग? इम्पॉसिबल. ओके, वो इकोनॉमिक टाइमिंग हो, थीमेटिक हो, जो भी हो, कैपिटलाइजेशन का हो. अभी मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, स्मॉल कैप से निकाल के इधर कर दूंगा, वो सब में नथिंग वर्क्स. Of course, that is not market timing. Okay, rebalancing आप कीजिए ना डिसिप्लिन तरीके से, रिस्क के हिसाब से आप rebalancing करना, तो that is natural, no sir. That is not market timing. Okay, can we deliver a portfolio with the highest return? Right? So should we be trying to manage the investor's portfolio or should we be trying to manage the investor's behavior? तो एक गोल क्लियर हो गया हमारा कि हमें सिर्फ इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेज करना है, हमको इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करना है. ओके, आप 4-5 अच्छे फंड हाउसेज ले लीजिए, उसमें आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए. ओके, लंबे समय में सबका रिटर्न सेम आने वाला है, राइट? जब किसी का नहीं बदलने वाला. ठीक है, पॉइंट 4-5 बनाने का क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. Okay, I am not here to claim that my returns are going to be better than anybody else. It's impossible. It's a stupid claim to make. But I think Sandeep is less intelligent than me, or less lucky than I am. I think that would be the only assumption, no? I know for a fact that he is more intelligent than me. Okay, and his luck and my luck, I have no idea. He might turn out to be a much luckier individual. तो फिर उसका return में से better होगा. Point is कि हमें इन्वेस्टर को अगर लंबे समय तक रखना है हमारे साथ, तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम करनी पड़ेगी. लॉन्ग टर्म रिटर्न को डैमेज किए बिना वॉलेटिलिटी कम करना इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डाइवर्सिफाई इफेक्टिवली. ओके, एंड इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन डज नॉट मीन कैपिटलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन. इट डज नॉट मीन थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन. इट मीन्स चूजिंग द फ्यू फंड्स that have the characteristics that you want but have different portfolios. Okay, that they are not investing in the same stocks, right?
और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिसाइड करने हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपकी लाइफ सिंपल करने के थोड़े बहुत तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स, हमारे जो गोल्स हैं वो क्या है? एक तो इन्वेस्टर बिहेवियर को मैनेज करना है। आप ये स्लाइड में देखेंगे तो मैंने ये नहीं लिखा है कि मतलब ऊपर जो है ये देखेंगे आप, मैंने लिखा है मैनेजिंग बिहेवियर इज द ओनली गोल। ओके, नॉट जस्ट इन्वेस्टर बिहेवियर, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, बट मैनेजिंग बिहेवियर। सो वी हैव टू इंक्रीज द पी। हमको इन्वेस्टर को धक्का मारते रहना है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाओ। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाने के कई बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। फाइनेंशियल गोल तो हम डिफाइन करते हैं, एस्पिरेशनल गोल डिफाइन कीजिए। ओके, रैशनल स्पेंडिंग में प्राइड इंस्टिल कीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर। अगर वो आदमी वो कैपेबिलिटी, आपको पता है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, अगर उसकी कैपेबिलिटी BMW लेने की है और अगर वो एक महिंद्रा की गाड़ी लेता है तो उसका जाके हाथ मिलाइए, उसको बोलिए सर ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, बेकार का ब्रांड पे खर्चा नहीं किया, ठीक है, अच्छी गाड़ी मिली है, अच्छे दाम पे मिली है, यू हैव सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, that is the perfect decision that you've taken. So you have to instill this pride in people, because people today take pride in reckless spending. You have to instill pride in rational spending. एक ये काउंटर नैरेटिव है कंज्यूमरिज्म का, बट आपको वो प्राइड अपने इन्वेस्टर्स में इंस्टिल करनी है, राइट? द सेकेंड इज इनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में न्यू SIP और SIP टॉपअप से बेटर कोई चीज़ नहीं है। जैसे किसी की इनकम बढ़े उसका 20-25% का SIP नया शुरू करवा दो। ओके, हर अप्रैल मई में ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपका जैसे इंक्रीमेंट हो, पहुंच जाओ भाई, कैसा रहा आपका साल, बोनस कितना मिला, क्या करें उसका, इंक्रीमेंट कितना मिला, क्या करें उसका, राइट? ये एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी आपको। SIP टॉपअप्स करते रहोगे और आपका पी बढ़ते रहेगा। ओके, और एक बार वो एक्सरसाइज करते हो तो साल भर उसका फायदा होता है, राइट? एंड एनकरेज रिस्क टेकिंग। एक ये नैरेटिव बना हुआ है लोगों के मन में कि फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दिस इज अ काइंड वर्ड फॉर रिटायरमेंट, बिकॉज रिटायरमेंट इज बिकम अ बैड वर्ड समहाउ। आई डोंट नो व्हाई इट्स बिकम अ बैड वर्ड, इट यूज्ड टू बी अ गुड वर्ड, बट पीपल फील वेरी हर्ट व्हेन यू टेल देम दैट दे आर रेडी टू रिटायर। उनको बुरा लगता है आजकल। हाँ, सेकेंड इनिंग्स, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम बोल, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोगों के मन में ये बात घुसी हुई है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा होना चाहिए, डेट में पैसा होना चाहिए। Okay, I completely disagree with that, because today the point at which an investor retires at an age of 60 or 65, he still has another 25-30 years to live. वो time frame is not for debt, that time frame is for equity. आप 25-30 साल का पैसा डेट में रखोगे, वो आदमी जब तक जिएगा ना, अपने लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ he will be on the street. Okay, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, खाने पीने के पैसे नहीं रहेंगे। तो रिस्क टेकिंग एनकरेज कीजिए। SWPs इन इक्विटी फंड्स आर एंड अ वेरी 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 सस्टेनेबल वे। ओके, और SWP अगर आप 6-7% पे रखते हैं अपना, एक इक्विटी फंड में पैसा लगा के 6-7% पे SWP रखते हैं, आपको लगता है आपका नुकसान हो? आज 6-7% के ऊपर FD का रिटर्न नहीं मिलता, 6-7% इधर रख दीजिए, मोर टैक्स एफिशिएंसी। ओके, एंड योर लॉन्ग टर्म वेल्थ इज प्रोटेक्टेड। Long-term wealth is not only protected, your wealth grows over a period of time. You are empowered to take much more, maybe consumer decisions. I mean, your healthcare is not a problem, your traveling is not a problem. आपको दुनिया देखनी है अगर उस एज पे तो देखिए जाके, right? So encouraging risk-taking at the later ages, I think, is a very, very important thing, and encouraging saving at the earlier ages is very, very important. My son is going to start work, I think, in a couple of days, maybe Monday, Tuesday, my younger son. Okay. And he came to me saying कि what should I do now? I'll be getting a salary. I said, listen, तेरा घर का खर्चा, तेरा जो खर्चा है वो तो घर पे रहने वाला है, तो हमारे साथ ही चलेगा, right? You keep 20-25% of your salary for to feel that you're spending your own money. उतना रख, okay? 75% is going into SIPs. Okay? अभी से आदत डाल दो। हाँ, वो उसका मर्जी है। मैंने बोला 20-25% रख अपने पास। यू शुड ऑल्सो फील द प्राइड, यू शुड ऑल्सो फील द प्राइड के मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरा खुद का पैसा खर्चा कर रहा हूँ। इफ यू वांट्स टू बाय समथिंग, यू शुड फील दैट एम्पावरमेंट। इट्स नॉट वेरी गुड। अच्छा है ना सर, अच्छा है ना सर। देखिए, जब तक वो आपके घर में रह रहे हैं और जब तक
जब तक आपकी क्षमता है, ओके, आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, हाँ या ना? जिसको नहीं रखना है वो हाथ ऊपर कर दे कि नहीं मैं नहीं रखूंगा अपने बच्चों का ध्यान। वो देखो उन्होंने बोल दिया साहब ने, दोनों हाथ ऊपर कर दिए उन्होंने कि मैं नहीं रखूंगा, बस ये नहीं होगा। ये नहीं होने वाला मुझसे। हाँ, करेक्ट, वो भी सीखना चाहिए। हाँ जी सर, ये आपका, आपके मन का ये भ्रम है कि सब सेविंग करेंगे। ओके, आपको लगता है सब सेविंग करते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिमिलर उम्र के हैं, मेरे बच्चों की उम्र के हैं। उसमें से कई थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, बाकी सब अपना पूरा का पूरा पैसा खर्चते हैं और माँ बाप से भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ खर्चे तो और खर्चे कम नहीं होंगे। आप ये मत सोचिए कि डिमांड कम होगा, आप दे रहे हो ना। आप थोड़ी ना बोलने वाले हो कि भैया आपने एसआईपी कर दिया, अभी आप भूखे मरो। आप तो उनको खाना भी खिलाओगे, कपड़े भी खरीद के दोगे, अगर गाड़ी चलानी है तो उसका पेट्रोल के पैसे भी दोगे, सब कुछ दोगे आप। बच्चे लोग अपने को सिखा दिए कि सपना तो माँ बाप के पैसे से ही होता है, अपने पैसे से जरूरी होती है। वही डायलॉग अपने को सुना दो और अपने से खिलाओ। Okay, this is a little, this is a more important slide, so I would request everyone to just pay attention, and it's a more important slide. The other thing is to increase the N, which is the number of years that people invest. आपको N का, आपको उनका longevity बढ़ाना है। तो disconnect volatility and risk. Volatility is also an opportunity. The only real risk is the permanent loss of capital. Permanent loss of capital happens when there are unpleasant surprises in the portfolio. We have seen enough companies, Amtech Auto type के और ये सब जो हैं, जो मतलब तुमने अगर equity लेके लिया है तो एकदम ही मतलब पूरा खत्म हो जाता है, राइट? या बहुत जोर से स्टॉक प्राइस गिरता है, इतना गिरता है, अपना वो कौन सा था रिलायंस का शेयर 2007-2008 में, सबको याद है, everyone remembers. Everyone remembers. अगर पैसा नहीं गवाया तो पेपर में तो पड़ा था जरूर। हाँ, तो रिलायंस पावर का पैसा प्राइस इतना टूटा कि उसका रिकवरी का होप एकदम खत्म हो गया, राइट? नो मैटर व्हाट इट डज, यू कैनॉट रिकवर योर मनी, सो दैट इज अ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। वॉलेटिलिटी इज नॉट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। कभी बाजार आपका गिरेगा तो बाजार ऊपर भी जाएगा, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिड्यूस फोकस ऑन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आर की ही बात होती है, उस पर फोकस कैसे रिड्यूस करें। और हमारा तरीका इन्वेस्टिंग का, और आप लोगों के लिए भी मेरा जो एडवाइस रहेगा वो यही रहेगा कि आप हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो सिलेक्ट कीजिए। ओके, और उसके बाद 3 मैजिक क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, वो 3 मैजिक क्वेश्चन आप इन्वेस्टर से पूछ लीजिए, आपका आर का फोकस खत्म हो जाएगा। ओके, बट ये 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। You need to have good quality stocks in your portfolio, so you need to select funds which have, these good quality stocks. And the biggest thing that I don't see distributors doing today is increase the big N, which is your number of investors. Okay, आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हो, आप लोगों के घर नहीं जाना चाहते, I understand completely. टीम हायर कीजिए। ओके, टीम को मैनेज करने के लिए प्रोसेस बनाइए, रिव्यू कंडक्ट कीजिए, उनको बोलो डोर टू डोर जाएं, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कीजिए, ओल्डर जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को रीच कीजिए, नई जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को रीच कीजिए। आज टुडे हाउ मेनी पीपल ऑफ अमंग यू ओके हैव इन्वेस्टर्स हु आर नॉट फ्रॉम योर जनरेशन, ओके, हु आर ईदर मच ओल्डर और मच यंगर, राइट? यंगर नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? आप अगर यंग लोगों को हायर करोगे ना तो आपको यंग इन्वेस्टर ला के देंगे। ओके, ओल्ड इन्वेस्टर तो आपको आपके इन्वेस्टर दे देते हैं, अरे मेरे पापा का पैसा है वो संभालो, अरे फादर इन लॉ का पैसा है उनका संभाल लो, मदर इन लॉ का है वो संभाल लो। ओके, यंग लोग, माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, वो उनके हम उम्र कोई उनके जाके दरवाज़ा खटखटाएगा ना तो वो कन्विंस होंगे, राइट? तो आपको टीम हायर करना बहुत ज़रूरी है।
ओके इन्वेस्टर्स का एक फ्लड आने वाला है. आई डोंट नो हाउ, you know, you're talking about even at a reasonable rate of growth. Today we have 5 crore investors. Okay, in 10 years time you will have 30 crore investors. Are you ready for that? Do you have the capacity to manage that? Okay, that is my biggest fear with the industry, with the mutual fund distributors, that you have not set in place capacity. आपके पास ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं है. इतना ग्रोथ आने वाला है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डायरेक्ट प्लान है, कि टेक प्लेटफॉर्म है, कि ये है, कि वो है. आपके घर बैठे बैठे आपको इन्वेस्टर आएंगे आपके पास, बट आपको मेहनत उसके लिए कैपेसिटी बनानी पड़ेगी. अगर आप उसके लिए कैपेसिटी नहीं बना रहे, देन यू आर द वंस हु आर गोइंग टू बी, यू नो, नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल. नहीं चलेगा. जी बिल्कुल. ओके, एंड मैनेज आवर ओन बिहेवियर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट सी दिस हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. ओके, आप अपने अपीयरेंस पे फोकस कीजिए. आपका कंपटीशन कौन है? हाँ जी, बैंक का आरएम. ओके, बैंक का आरएम कैसे कपड़े पहनता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सूट टाई पहन के जाइए. ओके, बट appearance should be, you know, absolutely top notch. You need to look like a professional. If you don't look like a professional, don't expect people to believe you're a professional. Okay, वो आपका competition है. You have to focus on your appearance. You have to. It is imperative. Grooming. Okay, कान के बाल साफ कीजिए, नाक के बाल साफ कीजिए, नाखून काटिए. नहीं, these are very basics. I don't see people doing it. That's why I'm saying. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये होता है, ये होता है. ओके, अच्छे जूते नहीं पहनते, चप्पल पहन के इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं. नहीं होने वाला है सर, नहीं होने वाला है. आप उनसे भरोसा मांगने जा रहे हो, राइट? आप उनसे भरोसा मांगने जा रहे हो. आपको भरोसा मांगना है ना, तो भरोसेमंद दिखना होगा. Your appearance has to be someone who can be trusted. Hygiene has to be top notch. Do not eat onions and go for an investor meeting. Simple fact है, अनियन गार्लिक खा के इन्वेस्टर की मीटिंग में मत जाइए. पोटेंशियल उनका तो नेचुरल फायदा है. बट these are things that you need to take care of. These are things you need. And demeanor. Okay, confident, calm and respectful. When you are respectful to others, others will naturally respect you. If you are not respectful to others, others will not respect you. Right? Confident and calm. Why confident and calm? Okay, confident, मैं आपको बताता हूँ. How many of you are ready for, you know, or maybe your younger generation is old enough now to come and become a part of your business? There will be quite a few now, right? And quite a few where it will happen in the next few years. What is your demeanor inside the house? Are you positive about your business, or are you constantly that same thing? TR कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, useless business, पता नहीं क्या होगा, कल को हम मर जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे. अगर आप ये बात अपने घर पे बोल रहे हो, तो आपका बच्चा आपके साथ काम नहीं करेगा. ओके, आपको उनमें ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है कि बॉस, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में. दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द बिजनेस आई एम इन. माई इज सेकेंड बेस्ट. Mine is second best, but your business is actually the best business in the world. Okay, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है. मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई, अगर तुम लोगों में थोड़ा भी मतलब अगर सेल्स एटीट्यूड है, आउटगोइंग एटीट्यूड है, प्लीज गेट इनटू दिस बिजनेस. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. दैट्स इट. ऑल यू हैव टू डू इज वर्क हार्ड, राइट? तो काम और कॉन्फिडेंट डिमीनर सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, अपने घर के लिए भी जरूरी है. यस मैम. लेकिन अभी जीरो इन्वेस्टमेंट में हम रिटायरमेंट प्लान, आपका रिटायरमेंट प्लान बन जाता है. सर, मैम, ये नीरज भाई ने एक एग्जांपल दिया था हमारी बोरीवली की मीटिंग में. ओके, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. कोविड के समय सबके चेक बंद हो गए थे. आपके चेक आ रहे थे ना? राइट? आपका पैसा आ रहा था, आप घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, पर आपका घर पे चेक आ रहा था. इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है?
तो ये सब बातें, ये कॉन्फिडेंस आपको लेके इन्वेस्टर के सामने जाना है कि मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस में हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ओके, आई एम respected, and I am here to help you succeed in your financial goals, in your aspirational goals, in everything that you have to do with investments. I am here to help you out. That demeanor is what is going to make you successful. 2 minutes. He's doing his job. I know. 2 minutes, I'll finish. Okay. तो गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके थोड़े बहुत गोल्स जो है वो आप अगर चाहिए तो लिख लीजिए. Acquiring new clients has to be your primary goal because लोग छोड़ के जाएंगे, और अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप नए लोगों को नहीं लेके आओगे तो बंद हो जाएगा. इवन टुडे एनजे का ये इतना एफर्ट चलता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन में कि 30% ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30 to 35% ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू ARNs, okay, are registering with NJ. 30 to 35%. That is the scale of the effort that is going on now when we have 30,000 partners already. जरूरत है करने की? नहीं है ना? 30,000 पार्टनर हैं, धंधा तो बढ़ते रहेगा 24% पे, right? But that effort needs to be made. You need to acquire clients. It'll keep you refreshed and energetic. आप यंग जनरेशन से मिलोगे, आपके आइडियाज चेंज होंगे, नए आइडियाज इनकलकेट करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज यू विल अडॉप्ट, राइट? इंक्रीज द पी विच इज रिलेंटलेस फोकस ऑन SIP. अगर आपका 1% नहीं है तो 1% की तरफ लग जाइए. आपको अपने AUM का 1% SIP में लाना ही है किसी भी हालत में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ओके. सो इंक्रीज N, which is where I said high quality portfolios, and basically you need to clearly differentiated high quality portfolios you need to create, okay, and deflect questions on R. उसका जो 3 मैजिक क्वेश्चंस है वो ये है, उसका प्रीकर्सर ऊपर है. आपको हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो आपको सिलेक्ट करने हैं. उसके बाद जब बाजार खराब हो या आपका कोई पोर्टफोलियो परफॉर्म ना कर रहा हो या कुछ हो तो आपको इन्वेस्टर जाके 3 सवाल पूछने, ओके. डू यू बिलीव एक्विटीज विल क्रिएट वेल्थ? यस और नो? पहले आप लोग कन्विंस हो जाइए. yes? जोर से बोलिए सर. डू यू थिंक Do you think that high quality stocks will outperform average stocks? Always. Over the long term. I'm not talking about every year. Over the long term. Confidence है? तो जोर से बोलिए. Okay. And do you see high quality stocks in your portfolio? पोर्टफोलियो लेके चले जाओ, बोलो बॉस TCS है, इन्फोसिस है, ये है, बजाज, टाटा है, ये है, ये तुम्हारी 100 कंपनियां हैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में. आज अगर रिटर्न कम है तो मैं ये सब बेच दूं? कंपनियां तो अच्छी हैं, लंबे समय में रिटर्न अच्छा देंगी, क्यों चूचू कर रहे हो पिछले 6 महीने के रिटर्न पे, राइट? दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो, व्हिच इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. इंक्रीजिंग N, व्हेन आई से इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू. एक, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, ओके, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, राइट? और दूसरा, इन्वेस्टर अप एंड डाउन को आप अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो. उनको जाके सिर्फ क्वालिटी दिखानी है, पोर्टफोलियो अच्छा है यार, चुप करके बैठो ना. हाँ? आज नहीं रिटर्न देगा, 6 महीने में देगा, क्यों कूद रहे हो? ये पोर्टफोलियो थोड़ी ना बेचा जाता है ऐसे टाइम पे, बात खत्म हो जाती है, ओके. आर पे डिस्कशन 0 पे लेके आइए. आर पे डिस्कशन नहीं करना है. जो क्वेश्चन आर पे आए उसको क्वालिटी पे कन्वर्ट कर दीजिए. बोले क्वालिटी देखिए, ठीक है. एंड हाउ कैन वी हेल्प? जस्ट 1 slide on this. That we have our basis, we have a rule-based investment process. Quality is at the basis of all our portfolios. Okay, our strategy is very, very well differentiated. Okay, so our overlap with the index is just 14-18%. Nifty 50 के साथ अगर हम overlap देखते हैं, okay, typically बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर आप निफ्टी के साथ ओवरलैप देखेंगे तो 15% तो 2 स्टॉक में ही हो जाएगा, रिलायंस और HDFC, ओके. हमारे पास रिलायंस नहीं है, राइट? सो नॉट बिकॉज वी डोंट थिंक इट्स क्वालिटी, बट बिकॉज इट डजंट फिगर इन आवर इन द टॉप क्वालिटी स्टॉक्स एट द मोमेंट, राइट? So we have quality in every portfolio. We have a transparent definition of policy, which I'll be very happy of quality, which I'll be very happy to take you through at a later time. And we have a true to label approach. Our investment approach is very different. Our overlap with other funds is very low.
10 से 12% का हमारा बाकी फंड्स के साथ ओवरलैप है, वहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज इज अबाउट 40%. Okay, so we have only a 12% overlap, 10 to 12% overlap with other funds, and we can create, we can complement any portfolio that you have. अगर आपके पास 4 फ्लेक्सी कैप फंड है तो 5वां इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन इससे मिल जाएगा आपको. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 5 का पैसा निकाल के यहाँ पे डालिए, बट इट कैन कॉम्प्लीमेंट एनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दैट यू हैव, राइट. एंड वी हैव सिंप्लिसिटी इन आवर अप्रोच. So we have limited schemes, we have a flexi cap, we have an ELSS. An ELSS is not an ELSS. Our ELSS is a focused 25 stock portfolio with a 3-year lock-in. Okay, 25 stock का portfolio है, 3 साल का lock-in है और हमारा एक BAF है. That is all that we have. There is one guiding principle that has driven NJ Group from the beginning, and that is the guiding principle we continue to believe in and implement. It is something that Charles Munger, who passed away earlier this year, late last year, he had said that take a simple idea, but take it seriously. Okay, that is what we have done from the beginning of time to now. So thank you so much for being here. Thank you. You weren't ready for that. I thought you thought I'd take more time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Raju ji. I think from a small group, it has grown to a bigger group in the industry. Yes, really, we will have more time. And Raju sir, be on the stage. I would like to call Alpa ma'am and Alok sir to please felicitate. I think Rupam he has. ठीक है, please felicitate Rajiv sir. आज 6-7% के ऊपर एफडी का रिटर्न नहीं मिलता, 6-7% इधर रख दीजिए, मोर टैक्स एफिशिएंसी. ओके, एंड योर लॉन्ग टर्म वेल्थ इज प्रोटेक्टेड. Long term wealth is not only protected, your wealth grows over a period of time. You are empowered to take much more, maybe consumer decisions. I mean, your healthcare is not a problem, your traveling is not a problem. आपको दुनिया देखनी है अगर उस एज पे तो देखिए जाके, right? So encouraging risk taking at the later ages, I think, is a very, very important thing, and encouraging saving at the earlier ages is very, very important. My son is going to start work, I think, in a couple of days, maybe Monday, Tuesday, my younger son. Okay. And he came to me saying कि what should I do now? I'll be getting a salary. I said, listen, तेरा घर का खर्चा, तेरा जो खर्चा है वो तो घर पे रहने वाला है तो हमारे साथ ही चलेगा, right? You keep 20-25% of your salary to feel that you're spending your own money. उतना रख, okay? 75% is going into SIPs, okay? अभी से आदत डाल दो. हाँ, वो उसका मर्जी है. मैंने बोला 20-25% रख अपने पास. यू शुड ऑल्सो फील द प्राइड, यू शुड ऑल्सो फील द प्राइड के मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरा खुद का पैसा खर्चा कर रहा हूँ. इफ यू वांट्स टू बाय समथिंग, यू शुड फील दैट एम्पावरमेंट. इट्स नॉट वेरी गुड. अच्छा है ना सर, अच्छा है ना सर. देखिए, जब तक वो आपके घर में रह रहे हैं और जब तक आपकी क्षमता है, ओके, आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, हाँ या ना? जिसको नहीं रखना है वो हाथ ऊपर कर दे कि नहीं मैं नहीं रखूंगा अपने बच्चों का ध्यान. वो देखो उन्होंने बोल दिया साहब ने, दोनों हाथ ऊपर कर दिए उन्होंने कि मैं नहीं रखूंगा, बस ये नहीं होगा. ये नहीं होने वाला मुझसे. हाँ, करेक्ट, वो भी सीखना चाहिए. हाँ जी सर, ये आपके मन का ये भ्रम है कि सब सेविंग करेंगे. ओके, आपको लगता है सब सेविंग करते हैं. हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिमिलर उम्र के हैं, मेरे बच्चों की उम्र के हैं. उसमें से कई थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, बाकी सब अपना पूरा का पूरा पैसा खर्चते हैं और माँ बाप से भी लेते हैं. हाँ जी,
हाँ हाँ खर्चे तो और खर्चे कम नहीं होंगे, आप ये मत सोचिए कि डिमांड कम होगा, आप दे रहे हो ना। आप थोड़ी ना बोलने वाले हो कि भैया आपने SIP कर दिया अभी आप भूखे मरो। आप तो उनको खाना भी खिलाओगे, कपड़े भी खरीद के दोगे, अगर गाड़ी चलानी है तो उसका पेट्रोल के पैसे भी दोगे, सब कुछ दोगे आप। और बच्चे लोग अपने को सिखा दिए कि सपना तो माँ बाप के पैसे से ही होता है, सपने में से जरूरी होती है, जरूरत है। वही दाई लोग अपने को सुना दो और अपने से खिलाफ। Okay, this is a more important slide, so I would request everyone to just pay attention, and it's a more important slide. The other thing is to increase the N, which is the number of years that people invest. आपको N का, आपको उनका longevity बढ़ाना है. तो disconnect volatility and risk. Volatility is also an opportunity. The only real risk is the permanent loss of capital. Permanent loss of capital happens when there are unpleasant surprises in the portfolio. We have seen enough companies, Amtech Auto type के और ये सब जो हैं, जो मतलब तुमने अगर equity लेके लिया है तो एकदम ही मतलब पूरा खत्म हो जाता है, right? या बहुत जोर से stock price गिरता है, इतना गिरता है अपना वो कौन सा था रिलायंस का शेयर 2007-2008 में, सबको याद है, everyone remembers. Everyone remembers. अगर पैसा नहीं गवाया तो पेपर में तो पड़ा था जरूर। हाँ, तो रिलायंस पावर का, तो रिलायंस पावर का पैसा प्राइस इतना टूटा कि उसका रिकवरी का होप एकदम खत्म हो गया, राइट? नो मैटर व्हाट इट डज, यू कैनॉट रिकवर योर मनी, सो दैट इज अ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। वॉलेटिलिटी इज नॉट परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। कभी बाजार आपका गिरेगा तो बाजार ऊपर भी जाएगा, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिड्यूस फोकस ऑन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आर की ही बात होती है, उस पर फोकस कैसे रिड्यूस करें। और हमारा तरीका इन्वेस्टिंग का, और आप लोगों के लिए भी मेरा जो एडवाइस रहेगा वो यही रहेगा कि आप हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो सिलेक्ट कीजिए। ओके, और उसके बाद 3 मैजिक क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, वो 3 मैजिक क्वेश्चन आप इन्वेस्टर से पूछ लीजिए, आपका आर का फोकस खत्म हो जाएगा। ओके, बट ये 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। You need to have good quality stocks in your portfolio, so you need to select funds which have, these good quality stocks. And the biggest thing that I don't see distributors doing today is increase the big N, which is your number of investors. Okay, आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हो, आप लोगों के घर नहीं जाना चाहते, I understand completely. टीम हायर कीजिए। ओके, टीम को मैनेज करने के लिए प्रोसेस बनाइए, रिव्यू कंडक्ट कीजिए, उनको बोलो डोर टू डोर जाएं, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कीजिए, ओल्डर जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को रीच कीजिए, नई जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर को रीच कीजिए। आज टुडे हाउ मेनी पीपल ऑफ अमंग यू ओके हैव इन्वेस्टर्स हु आर नॉट फ्रॉम योर जनरेशन, ओके, हु आर ईदर मच ओल्डर और मच यंगर, राइट? यंगर नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? आप अगर यंग लोगों को हायर करोगे ना तो आपको यंग इन्वेस्टर ला के देंगे। ओके, ओल्ड इन्वेस्टर तो आपको आपके इन्वेस्टर दे देते हैं, अरे मेरे पापा का पैसा है वो संभालो, अरे फादर इन लॉ का पैसा है उनका संभाल लो, मदर इन लॉ का है वो संभाल लो। ओके, यंग लोग, माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, वो उनके हम उम्र कोई उनके जाके दरवाज़ा खटखटाएगा ना तो वो कन्विंस होंगे, राइट? तो आपको टीम हायर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन्वेस्टर्स का एक फ्लड आने वाला है। I don't know how, you're talking about even at a reasonable rate of growth. Today we have 5 crore investors. Okay, in 10 years time, you will have 30 crore investors. Are you ready for that? Do you have the capacity to manage that? Okay, that is my biggest fear with the industry, with the mutual fund distributors, that you have not set in place capacity. आपके पास ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं है। इतना ग्रोथ आने वाला है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डायरेक्ट प्लान है, कि टेक प्लेटफॉर्म है, कि ये है, कि वो है। आपके घर बैठे बैठे आपको इन्वेस्टर आएंगे आपके पास, बट आपको मेहनत उसके लिए कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए कैपेसिटी नहीं बना रहे, देन यू आर द वंस हु आर गोइंग टू बी नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। ओके, एंड मैनेज आवर ओन बिहेवियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई डोंट सी दिस हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, आप अपने अपीयरेंस पे फोकस कीजिए।
आपका कंपटीशन कौन है? हाँ जी, बैंक का आरएम। ओके, बैंक का आरएम कैसे कपड़े पहनता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं सूट टाई पहन के जाइए, ओके, बट appearance should be, you know, absolutely top notch. You need to look like a professional. If you don't look like a professional, don't expect people to believe you're a professional. Okay, वो आपका competition है. You have to focus on your appearance. You have to. It is imperative. Grooming. Okay, कान के बाल साफ कीजिए, नाक के बाल साफ कीजिए, नाखून काटिए. नहीं, these are very basics. I don't see people doing it. That's why I'm saying. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये होता है, ये होता है. ओके, अच्छे जूते नहीं पहनते, चप्पल पहन के इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं. नहीं होने वाला है सर, नहीं होने वाला है. आप उनसे भरोसा मांगने जा रहे हो, राइट? आप उनसे भरोसा मांगने जा रहे हो. आपको भरोसा मांगना है ना, तो भरोसेमंद दिखना होगा. Your appearance has to be someone who can be trusted. Hygiene has to be top notch. Do not eat onions and go for an investor meeting. Simple fact है, अनियन गार्लिक खा के इन्वेस्टर की मीटिंग में मत जाइए. पोटेंशियल उनका तो नेचुरल फायदा है. बट these are things that you need to take care of. These are things you need. And demeanor. Okay, confident, calm and respectful. When you are respectful to others, others will naturally respect you. If you are not respectful to others, others will not respect you. Right? Confident and calm. Why confident and calm? Okay, confident, मैं आपको बताता हूँ. How many of you are ready for, you know, or maybe your younger generation is old enough now to come and become a part of your business? There will be quite a few now, right? And quite a few where it will happen in the next few years. What is your demeanor inside the house? Are you positive about your business, or are you constantly that same thing? TR कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, useless business, पता नहीं क्या होगा, कल तो हम मर जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे. अगर आप ये बात अपने घर पे बोल रहे हो, तो आपका बच्चा आपके साथ काम नहीं करेगा. ओके, आपको उनमें ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है कि बॉस, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में. दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द बिजनेस आई एम इन. माई सेकेंड बेस्ट. Mine is second best, but your business is actually the best business in the world. Okay, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है. मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई, अगर तुम लोगों में थोड़ा भी मतलब अगर सेल्स एटीट्यूड है, आउटगोइंग एटीट्यूड है, प्लीज गेट इनटू दिस बिजनेस. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. दैट्स इट. ऑल यू हैव टू डू इज वर्क हार्ड, राइट? तो काम और कॉन्फिडेंट डिमीनर सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, अपने घर के लिए भी जरूरी है. यस मैम. लेकिन अभी जीरो इन्वेस्टमेंट में हम रिटायरमेंट प्लान, आपका रिटायरमेंट प्लान बन जाता है. सर, मैम, ये नीरज भाई ने एक एग्जांपल दिया था हमारी बोरीवली की मीटिंग में. ओके, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. कोविड के समय सबके चेक बंद हो गए थे. आपके चेक आ रहे थे ना? राइट? आपका पैसा आ रहा था, आप घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, पर आपका घर पे चेक आ रहा था. इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? तो ये सब बातें, ये कॉन्फिडेंस आपको लेके इन्वेस्टर के सामने जाना है कि मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस में हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं. ओके, आई एम, you know, respected, and I am here to help you succeed in your financial goals, in your aspirational goals, in everything that you have to do with investments. I am here to help you out. That demeanor is what is going to make you successful. 2 minutes. sorry, he's doing his job. I know. 2 minutes, I'll finish. Okay. तो गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके थोड़े बहुत गोल्स जो है वो आप अगर चाहिए तो लिख लीजिए. Acquiring new clients has to be your primary goal because लोग छोड़ के जाएंगे, और अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप नए लोगों को नहीं लेके आओगे तो बंद हो जाएगा. इवन टुडे एनजे का ये इतना एफर्ट चलता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन में कि 30% ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30 to 35% ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू ARNs, okay, are
registering with NJ. 30 to 35%. That is the scale of the effort that is going on now when we have 30,000 partners already. जरूरत है करने की? नहीं है ना? 30,000 पार्टनर है, धंधा तो बढ़ते रहेगा 24% पे, right? But that effort needs to be made. You need to acquire clients. It'll keep you refreshed and energetic. आप यंग जनरेशन से मिलोगे, आपके आइडियाज चेंज होंगे, नए आइडियाज इनकलकेट करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज यू विल अडॉप्ट, राइट? इंक्रीज द पी विच इज रिलेंटलेस फोकस ऑन SIP. अगर आपका 1% नहीं है तो 1% की तरफ लग जाइए. आपको अपने AUM का 1% SIP में लाना ही है किसी भी हालत में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ओके, so increase N, which is where I said high quality portfolios, and basically you need to clearly differentiated high quality portfolios you need to create. Okay, and deflect questions on R. उसका जो 3 magic questions है वो ये है, उसका प्रीकर्सर ऊपर है. आपको हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो आपको सिलेक्ट करने हैं. उसके बाद जब बाजार खराब हो या आपका कोई पोर्टफोलियो परफॉर्म ना कर रहा हो या कुछ हो, तो आपको इन्वेस्टर जाके 3 सवाल पूछने. ओके, डू यू बिलीव एक्विटीज विल क्रिएट वेल्थ? यस और नो? पहले आप लोग कन्विंस हो जाइए. yes? जोर से बोलिए सर. डू यू थिंक Do you think that high quality stocks will outperform average stocks? Over the long term. I am not talking about every year. Over the long term. Confidence है? तो जोर से बोलिए. Okay. And do you see high quality stocks in your portfolio? Portfolio लेके चले जाओ, बोलो बॉस TCS है, Infosys है, ये है, बजाज, टाटा है, ये है, ये तुम्हारी 100 कंपनियां हैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में. आज अगर रिटर्न कम है तो मैं ये सब बेच दूं? कंपनियां तो अच्छी हैं, लंबे समय में रिटर्न अच्छा देंगी, क्यों चूचू कर रहे हो पिछले 6 महीने के रिटर्न पे, राइट? That can only happen when you're confident about the quality of your portfolio, which is why this is important. Increasing N, when I say it is important from 2 points of view. एक, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, ओके, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, राइट? और दूसरा, इन्वेस्टर अप एंड डाउन को आप अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो. उनको जाके सिर्फ क्वालिटी दिखानी है, पोर्टफोलियो अच्छा है यार, चुप करके बैठो ना. हाँ? आज नहीं रिटर्न देगा, 6 महीने में देगा, क्यों कूद रहे हो? ये पोर्टफोलियो थोड़ी ना बेचा जाता है ऐसे टाइम पे, बात खत्म हो जाती है. ओके, आर पे डिस्कशन 0 पे लेके आइए. आर पे डिस्कशन नहीं करना है. जो क्वेश्चन आर पे आए उसको क्वालिटी पे कन्वर्ट कर दीजिए. बोले क्वालिटी देखिए. ठीक है. एंड हाउ कैन वी हेल्प? जस्ट 1 slide on this, that we have our basis, we have a rule based investment process. Quality is at the basis of all our portfolios. Okay, our strategy is very, very well differentiated. Okay, so our overlap with the index is just 14-18%. Nifty 50 के साथ अगर हम overlap देखते हैं, okay, typically बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर आप निफ्टी के साथ ओवरलैप देखेंगे तो 15% तो 2 स्टॉक में ही हो जाएगा, रिलायंस और HDFC. ओके, हमारे पास रिलायंस नहीं है, राइट? सो नॉट बिकॉज वी डोंट थिंक इट्स क्वालिटी, बट बिकॉज इट डजंट फिगर इन आवर in the top quality stocks at the moment, right? So we have quality in every portfolio. We have a transparent definition of policy, which I'll be very happy of quality, which I'll be very happy to take you through at a later time. And we have a true to label approach. Our investment approach is very different. Our overlap with other funds is very low. 10 से 12% का हमारा बाकी फंड्स के साथ ओवरलैप है, वहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज इज अबाउट 40%. Okay, so we have only a 12% overlap, 10 to 12% overlap with other funds, and we can create, we can complement any portfolio that you have. अगर आपके पास 4 फ्लेक्सी कैप फंड है तो 5वां इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन इससे मिल जाएगा आपको. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 5 का पैसा निकाल के यहाँ पे डालिए, बट इट कैन कॉम्प्लीमेंट एनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दैट यू हैव, राइट? एंड वी हैव सिंप्लिसिटी इन आवर अप्रोच. So we have limited schemes, we have a flexi cap, we have an ELSS. An ELSS is not an ELSS. Our ELSS is a focused 25 stock portfolio with a 3-year lock-in. Okay, 25 stock का portfolio है, 3 साल का lock-in है और हमारा एक BAF है. That is all that we have. There is one guiding principle that has driven NJ Group from the beginning, and that is the guiding principle we continue to believe in and implement. It is something that Charles Munger, who passed away earlier this year, late last year, he had said
that take a simple idea but take it seriously. Okay, that is what we have done from the beginning of time to now. So thank you so much for being here. Thank you.